Welcome back. Today we are going to discuss covalent bond, its types and coordinate covalent bond, which is also known as dative bond. Why is coordinate covalent bond known as dative bonds? Watch the video till the end. We will discuss here. Please don't go away anywhere. So let's start. Covalent bond is that bond which is formed by the complete sharing of electrons from one atom to another atom. जब एक एटम से दूसरे एटम आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करे, this type of bond is known as covalent bond. We had discussed in the last lecture, हमारे previous lecture में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया था, जिसमें क्या होता है कि एक एटम कंप्लीट ट्रांसफर करता है या किसको, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम में. One is called donor and the other is called acceptor. Because of the strong electrostatic forces की वजह से that type of bond was known as ionic bond. यहाँ पर क्या होता है, दोनों एटम्स म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इलेक्ट्रॉन्स एक भी हो सकता है, they can share 1 2 3 4 anyway they can go on. Okay, so this type of bond is known as covalent bond. Common example we have hydrogen molecule. H2 is a hydrogen molecule, not hydrogen atom. यहाँ पर क्या होता है कि each hydrogen atom shares its electrons with the other hydrogen atom. जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 जब बनता है, it is formed when both hydrogen atoms share their electrons with one another. You can see in the diagram there is one hydrogen atom, it is sharing one electron with this another hydrogen atom. Okay, you can see दो electrons को share कर रहे, तब हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ जाता है. Okay, now this type of bond is known as covalent bond. We can see covalent bond in different types of elements या different type of molecules. First हमारे पास यहाँ पर I've given some common examples. Carbon dioxide, oxygen, water, these all follow these all compounds covalent bonds are formed. Next हमारे पास आता है कि all the atoms follow octet rule. यहाँ पर भी octet rule follow किया जाता है. Oct का मतलब क्या है? 8. कि each atoms attains electronic configuration by 8 electrons in the valence shell. हर एटम ये कोशिश करता है कि उसका जो लास्ट शेल है उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाए. ओके, सो this type of rule is octet rule to achieve stability. Why do atoms attain octet rule? To achieve stability, कि वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए they achieve the octet rule. यहाँ पर मैं लिखूं कि to achieve stability. लेकिन hydrogen is different from other atoms. Hydrogen does not achieve octet rule. हाइड्रोजन, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन के लास्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं. ओके, सो हाइड्रोजन डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू गेट मोर इलेक्ट्रॉन्स. इसीलिए हाइड्रोजन के लिए फिर एक अलग सा रूल है. दैट रूल इज नोन एज डुप्लेट रूल. डुप्लेट का मतलब क्या है? 2. हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. वाई? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज. This was covalent bond. अब covalent bonds is divided into 3 types on the basis of sharing of electrons. Electrons कितने atoms कितने electron को share करते हैं, उसके basis पर covalent bonds is of 3 types. Number 1 is single covalent bond. The bond या covalent bond which is formed by sharing single electron pair. जब 2 atoms एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. वी कैन शो इट बाय अ सिंगल लाइन. इस तरह सिंगल डैश लाइन से हम लोग इसको डोनेट कर सकते हैं. कॉमन एग्जांपल यहाँ पर है. यू कैन सी हियर कि हाइड्रोजन एटम, अभी मैंने कहा था कि व्हेनेवर हाइड्रोजन एटम जो है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है. सेकेंड टाइप इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड. दैट कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 electrons pair. यहाँ पर 2 electrons pair शेयर हो जाते हैं. This type of bond is known as double covalent bond. It is commonly observed in carbon dioxide gas, oxygen gas या मीथेन गैस. मतलब ये सारे इन गैसेस में ही हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसको फिर हम लोग डबल लाइन से शो करते हैं. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाज शोन बाय सिंगल लाइन या डैश. वी रिप्रेजेंट डबल कोवेलेंट बॉन्ड बाय डबल लाइंस. यहाँ पर यू कैन सी दिस इज द ऑक्सीजन एटम. एक से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है. 2 4 5 6. ओके, 2 4 5 6. कार्बन का एटम है यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर जब कार्बन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तो इसका मतलब क्या है? एक कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा. ओके, यू कैन सी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं दोनों एटम्स. तीसरा हमारे पास आता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड.
दैट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, जब एटम्स आपस में 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को शेयर करे, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो है कॉमनली ऑब्जर्व होता है हमारे पास नाइट्रोजन गैस में एंड एसिटाइलिन C2H2 जिसका फार्मूला है। हम इसको ट्रिपल लाइन से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस वाज कोवेलेंट बॉन्ड एंड इस टाइप। अब जो हमारे पास लास्ट टाइप जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या सेकेंडली वी आल्सो नो इट बाय डेटिव बॉन्ड। हम इसको डेटिव बॉन्ड से भी कहलाते हैं। मैंने एट द स्टार्टिंग में कहा था कि व्हाई इज कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड नोन एज डेटिव बॉन्ड। इसकी एक खास वजह है। डेटिव इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स डेयर टू गिव, यानी टू डोनेट, देने वाला। ओके ये इस तरह का बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें यह होता है कि बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय द वन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी जो एक एटम पेयर होता है, ठीक है, जो एक एटम होता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं एक ही एटम शेयर करता है, दूसरा सिर्फ उसको एक्सेप्ट करता है। ओके एंड देयर इज ओनली वन डोनर। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ओके या इट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड या NH3 अमोनिया गैस। यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने इनका स्ट्रक्चर खोल दिया है। ये बोरोनो गैस के साथ 3 फ्लोरीन एटम है। अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन इसके 3 हाइड्रोजन एटम है। अब बोरोन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। यू कैन सी द 2 रेड स्मॉल डॉट्स, इसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन क्या, और अभी मैंने कहा था ओके कि हाइड्रोजन वांट टू डोनेट दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपने आप को स्टेबल करे, जबकि बोरोन वांट्स टू एक्सेप्ट दिस lone pair of electrons to make itself stable. नाइट्रोजन इस lone pair of electrons को डोनेट करेगा टू बोरोन, जिसमें हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ये जब देख सकते हैं कैन सी इस तरह का कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा BF3। ओके दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बोथ वांट्स टू अचीव स्टेबिलिटी। बोरोन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होना चाहता है। ही वांट्स टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि फ्लोरीन जो है वो भी ही वांट्स टू डोनेट या इट वांट्स टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इसको हम लोग हाउ इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंटेड, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो साइन। ये एरो साइन उस डायरेक्शन को भी शो करती है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड। तो दिस एरो साइन आल्सो शोज के फ्रॉम वेयर आर इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड। ओके सो यहाँ पर अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेगा, डोनेट करेगा ऑक्सीजन टू मेक इटसेल्फ स्टेबल। हाइड्रोजन फिर उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा टू मेक इटसेल्फ स्टेबल। दिस वाज टुडेज टॉपिक, कोवेलेंट बॉन्ड विद इट्स टाइप्स एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। थैंक यू। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोनियम आयन की। जब पानी के साथ हाइड्रोजन हम लोग प्लस करते हैं, या फॉर एग्जांपल व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वाटर देन वी फॉर्म H3O प्लस, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर यू कैन सी कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज नॉट स्टेबल। ये अपने इस लोन पेयर ऑफ